बच्चों, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? सो वेलकम यू ऑल अगेन इन मैक्सिमस, a digital learning platform to provide you quality education. Here me and my team prepare a quality content to empower you with the best of the best education. This is not going to clear all your concept, but also going to learn very fast, right? So from today onwards, we are going to start a new topic. It's a very interesting topic. You are going to love this topic, and this is the foundation of this topic, right? This topic again going to continue in your next classes. Next classes you're going to going to learn so many things, and half part has been removed from your syllabus. So in next in next class 11th, you are going to learn so many things of this topic. So the our topic is arithmetic progression. So the arithmetic progression topic is very interesting, right? And you can say this is the part of sequence and series, and with this topic you are going to learn actually about the sequences and series, right? So when I say the sequence is a kind of unique pattern kind of number system. There is a number, so many numbers, and they are arranged in a unique pattern, that is known as sequence. And series, when you sum all the sequences, they are known as series. So we are going to learn sequence and series. And progression, the part of sequence and series is progression. So there is different kind of progression. This is arithmetic progression is very one of the most basic progression. Then there are after geometric progression, there are harmonic progression. So many progression are there. But in class 10th we are going to learn about the arithmetic progression. So with this we are going to start arithmetic progression, right? So the sequence, a list of numbers of objects in a spatial order. Already told you that if you have some objects in a spatial order, so that object can be numbers, object can be any pattern, object can be buildings, object can be so many houses in a row. All things are known as sequences. So like examples are given 1 2 3 4 5. So these 1 2 3 4 5 are pattern of these are the patterns of numbers, right? So this pattern of number, there is a pattern, right? So what is the pattern? Pattern, you can say all the numbers have been written in a pattern. When there is there is a difference between consecutive number is constant. So this is written in spatial pattern. So this is known as sequence. So you can also take 3, 9, 27 and 81. This is also a pattern. What is the pattern? The pattern is that, so you can say here, if you can see clearly see that this is 3 power 1, this is 3 power 2, this is 3 power 3, this is 3 power 4. Similarly, you can see that this is the pattern, right? So another example you can see, you can see, आप देख सकते हो equal to 1/2, 1/4, then 1/8, and then so on. So here you can again you can see 1/2 power, this is 1, then this is 1/2 power 2, then here it's 1/2 power 3. So this is definitely sequence. So this is written in a certain certain order. So this is known as sequence. So this concept is known as sequence, right? So again there is another concept. This is another sequence is written. This is 2, this is 4, this is 6 and 8. So this is another part of sequence, right? So you can see the difference between, this is difference between 4 and 2 is 2, difference between 6 and 4 is 2, difference between 8 and 6 is 2. So this is defined order, right? All the numbers, all the objects has been written in a certain order. So this is known as sequence. And when we add all these sequence, right, like sequence is given here, correct? So this is the sequence. If this is a 1 2 3 4 5 is the sequence. So when we add 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 plus dot to n numbers, right? So that will be known as series. So the addition of all the addition of sequence is known as series, right? So here you can say if we add 3 plus 9 plus 27 plus 81 and so on to n times, right? So this will be known as series, correct? So here again, right, this is the 3, this is the, sorry, this is
1/2, 1/2 plus 1/4 plus 1/8 plus so on to n times. So known as series. Correct. So if you see sequence and series, so there are two category of sequence and there are two category of series. So what are those category? So you can see I told you है ना, I तो आपने देखा होगा कि मैंने जब 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 2 n टाइम्स मैंने बोला. सो देयर कैन बी टू काइंड ऑफ थिंग है ना. पहला क्या हो सकता है टाइप? पहला टाइप हो सकता है कि वो फाइनाइट हो. ठीक है, फाइनाइट सीरीज हो, फाइनाइट सीरीज, राइट, फाइनाइट सीरीज सीक्वेंस. जब मैं फाइनाइट सीक्वेंस की बात करता हूँ तो ये n टाइम्स तक जा रहा है ना. ये नंबर 1 2 3 4 5 जो मैंने लिखा है ये कब तक जा सकता है? n टर्म्स तक जा सकता है, राइट. सो दिस इज नोन एज फाइनाइट सीक्वेंस. करेक्ट. और जब मैं इनफाइनाइट सीक्वेंस बोलूंगा, राइट, इनफाइनाइट सीक्वेंस, इनफाइनाइट सीक्वेंस, इन दैट मीन्स कि मैं जो लिख रहा हूँ, ठीक है, वो लिख रहा हूँ जैसा कि मैंने पहले लिखा था 1 2 3 4 5 2 so on so on so on. So that is known as infinite sequence. There is two kinds of sequence. So sequence दो तरीके के होंगे तो उनके एडिशन होंगे वो भी दो तरीके के होंगे, राइट. तो उसको क्या बोलेंगे? इनफाइनाइट, फाइनाइट सीरीज, राइट, फाइनाइट सीरीज एंड इनफाइनाइट सीरीज. करेक्ट. So there is two kind of sequence and there is two kind of series, right. So this is known as sequence and series. Correct. Then hope you understand this thing, right. So we can move ahead. Correct. Right. So this is all about sequence and series. But when we say the progression, what is the progression? Progression is, you know, when the first term, difference between the first term and the second term is a constant, right. So when I say like by pretend, you know, this when I say you know series 1 2 3 4 5. So if the difference between 1 to 1 is constant and first term to next term is constant, like 1 2 then 3 then 4. So difference between 1 and 2 is constant. How much is the difference? There is difference between 1 and 1. Here again its difference is 1. Here again its difference is 1. Here again you can say the difference is 1. So on. So we can say that this is this kind of term is known as progression, right. So we can find the difference, and this difference is known as common difference. Correct. Can you say this is the common difference? Common difference between second you know both the two consecutive numbers, right. So this is known as common difference, right. So we can, you know, you can differentiate between sequence, series and progression. There's three terms. The sequence already told, this is defined order kind of thing known as sequence. An addition of, you know, defined order of sequence is known as series, and the progression is when difference between the two objects is a constant, right. The same. So in that case it is known as progression. Look at some of the, you know, terms, some of the sequences, right. So we'll understand more. Correct. ये देखो ना, write the first three terms in each of the following sequence defined by the following, right. अब यहाँ पे हमारे पास एक सीक्वेंस दिया हुआ है, करेक्ट, एक डिफाइंड ऑर्डर है. मैंने क्या बोला? सीक्वेंस के डिफाइंड ऑर्डर में आती है, ठीक है. तो पहला क्वेश्चन देखो, क्या है पहला क्वेश्चन. इसको लर्न बाय डूइंग, राइट. पहला क्या है हमारे पास? दिस इज ए एन इक्वल्स टू, फर्स्ट इज ए एन इक्वल्स टू 2n + 5, ठीक है. ये एक सीक्वेंस है, ठीक है. अब हमें सीक्वेंस को जनरेट करना है कि क्या सीक्वेंस है, ठीक है. तो लेट्स टेक n इक्वल्स टू 1 2 3 4 5. हमने n को कुछ भी मान लिया, ठीक है. n हमने, लेट्स टेक एग्जांपल, लेट्स टेक n इक्वल्स टू 1 2 3 4 to n टाइम्स, राइट. अगर मैं n की जगह अगर 1 डालूंगा, a1 कितना होगा? a1 विल बी 2 × 1 + 5, ठीक है. n की जगह अगर मैं 2 डालूंगा, 2 × 2 + 5 ये होगा. सो दिस इज 2 + 5 is 7. So this is the 2 × 4 + 5 is 4 + 5 is 9, right. अगर मैं n की जगह 3 डालूंगा क्या होगा? 2 × 3 + 5. So this is 6 + 5 is, you know, 11. So there is a fixed order. So this is, you can say this is 7, this is 9, this is 11 and so on. So the sequence is fixed, correct. इस तरीके के टर्म को हम इस तरीके से जनरेट कर सकते हैं, राइट. इस तरीके के क्वेश्चन 1 मार्कर में आपको बोर्ड एग्जाम्स में आ सकते हैं, करेक्ट. तो आते भी रहते हैं, करेक्ट. तो ये एक सीक्वेंस हमने बनाया, ठीक है. अब इसके जगह हमने जो 1 2 3 4 5 माना,
वो दैट कैन बी एनीथिंग नंबर। आपने अगर 2 3 4 अगर माना होता, अगर 7 8 9 मान, मतलब एक पैटर्न में अगर यू नो टेक आपने एग्जांपल लिया होता है ना, n की जगह आपने मान लो कि -1 -2 -3 -4 लिया होता, तो यहाँ पे कुछ और नंबर निकल के आया होता, करेक्ट। बट वो एक रेगुलर पैटर्न में होता है, उनके पैटर्न जो है फिक्स होता है, राइट। टेक एन एग्जांपल ऑफ सेकंड एग्जांपल। यहाँ पे क्या है, an इज इक्वल्स टू n माइनस 3/4 ये दिया हुआ। अगेन लेट्स टेक एन एग्जांपल, let's consider n is equals to 1 2 3 4 and so on, करेक्ट। अगर n की जगह अगर मैंने a1 अगर मान लो कि मैंने n की जगह 1 डाला, 3 डाला, 4 डाला, क्या निकल के आएगा, दिस इज -2/4, so this is -2, करेक्ट। n की जगह मैंने 2 डाला, so what is this 2 - 3/4, क्या निकल के आ रहा है, so this is -1/4, राइट। तो यहाँ दूसरा टर्म क्या आ रहा है, -1/4। n की जगह मान लो, लेट्स टेक एग्जांपल, n की जगह 3 डाला, सो दिस इज हाउ मच, 3 - 3/4, क्या निकल के आ रहा है, 0, ठीक है। n की जगह मैंने, लेट्स टेक एग्जांपल, n की जगह मैंने 4 डाला, ठीक है, n की जगह आपने 4 डाला, a4 इक्वल्स टू 4 - 3/4, हाउ मच दिस इज 1/4। आप जो सीक्वेंस देख रहे हो, -2 देन -1/4, ठीक है, देन 0 देन 1/4, ऑल द ऑर्डर्स आर कांस्टेंट, ठीक है। तो जितने भी ऑर्डर निकल के आ रहा है सबके सब कांस्टेंट है, ठीक है। सो दिस इज द 2/4, सो दिस इज 1/2, राइट, सो दिस इज 1/2, ठीक है। आप देख सकते हो द डिफरेंस बिटवीन ऑल द टर्म्स, सो दिस इज हाफ, अगेन दिस इज यू नो this is 1/4 from difference between these two are 1/4, and again this is 1/4, and here again it is 1/4, so you can see कि डिफरेंसेस जो कांस्टेंट आ रहे हैं, तो एक सीक्वेंस जनरेट हो रहा है, मतलब है ना एक रेगुलर यू नो सर्टेन पैटर्न में ये सारे के सारे बने हुए हैं, करेक्ट। तो इस तरीके से हमने सीक्वेंस को जनरेट किया, ठीक है। अब देखो एक और पैटर्न क्वेश्चन है, व्हाट इज द 20th टर्म ऑफ द सीक्वेंस डिफाइंड बाय an। तो मीन्स इसने क्या 20th टर्म बोला है जनरेट करने के लिए, ये एक पैटर्न दिया हुआ है, ठीक है। अगर n की वैल्यू 20 20 रखोगे तो ये सीक्वेंस जनरेट होके निकल के आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चन ही बोर्ड एग्जाम्स में आपको आएंगे, करेक्ट। 1 मार्कर क्वेश्चन जो होते हैं 1 मार्कर 2 मार्कर में इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे। अब लेट्स, मैंने क्या किया 1 की जगह पे यहाँ पे क्या किया था 1 2 3 4 5 6 एक सीक्वेंस जनरेट होके आया था, ठीक है। तो हमें क्या बोलते हैं कि 20th है ना, 20th टर्म क्या होना है, तो इन्होंने 20th टर्म डायरेक्टली बोला है। यहाँ पे क्या हमें सीक्वेंस जनरेट करना है, तो यहाँ पे 20th टर्म जनरेट करना है, तो हमें क्या करना है, लेट्स टेक n इक्वल्स टू 2 20, ठीक है। इन्होंने दिया कि 20 का टर्म हमें निकालना है, तो व्हाट विल डू, विल पुट द वैल्यू ऑफ n इक्वल्स टू 20। तो अगर मैं 20 - 1 पुट करूँ, ठीक है, n की जगह 20 पुट किया, देन 2 - 20 पुट किया, ठीक है, देन 3 + 20 पुट किया, तो यहाँ पे क्या निकल रहा है, दिस इज 19 इंटू दिस इज -18 and this is 23, ठीक है। so you will multiply all this thing, so 19 into -18 into 23, so we'll get the value, right। तो वो हमारा आपका आंसर होगा, करेक्ट। by this you have to generate the sequence, करेक्ट। अब अगर मुझे बोलता कि अगर n की वैल्यू अगर ये है, अब मुझे सीरीज निकालना है, ठीक है। सीरीज में क्या होता है 7 + 9 + 11 + so on, उसके थ्रू हम ना ये इनफाइनाइट सीरीज जो है निकल के आ जाता है, ठीक है। तो इसके थ्रू हम सीरीज निकाल पाते हैं, यहाँ पे भी सीरीज निकाल पाते हैं। यहाँ पे डायरेक्टली इन्होंने 20th टर्म पूछा हमसे, तो हमने क्या किया n की जगह 20th पुट किया एंड वी गॉट द वैल्यू। आर यू गेटिंग इट? चलो आगे बढ़े, चलो ग्रेट है। सो सीरीज, so let's a1 a2 a3 ये जो इन गिवन सीक्वेंस, तो मैंने अभी क्या बोला, अभी मैंने ऑलरेडी सीरीज ऑलरेडी बता दिया आपको, है ना। सो अगर मान लो कि अगर a1 अगर सीक्वेंस में a1 a2 a1 a2 a3 a4 a5 अगर एक सीक्वेंस है, इसका सीरीज क्या होना था, इसका सीरीज क्या होना है, तो वो होगा a1 + a2 + a3 + a4 + a5 + so on, ठीक है। so this will be this will be known as series, already I told you, है ना।
ये इसे क्या बोलते हैं, सीरीज बोलते हैं, ठीक है, सीरीज। ये क्या है, ये सीक्वेंस है, राइट, समझ में आ रहा है ना। तो वेरी इजी टॉपिक और बहुत ही मजेदार टॉपिक है, राइट। तो दिस इज द डेफिनेशन काइंड ऑफ थिंग। अगर मान लो कि आपके पास एक सीक्वेंस है 1 2 3 4 to 10, ठीक है, 10 नंबर तक का टर्म है, राइट। अगर मुझे इसका सीरीज निकालना है, दिस इज द सीक्वेंस, this kind of this is unique pattern. The difference between 1 to 2 is 1, the difference between 2 to 3 is 1, difference between 3 to 4 is 1. So you can say this is the sequence, right? So this is an example of what? This is example of sequence, correct? मुझे इसका सीरीज निकालना हो तो क्या करूंगा मैं, 1 plus 2 करूंगा, plus 3 plus 4 करूंगा, plus so on to plus 10 करूंगा, right? So the value is 55. So this is an example of series, correct? ये क्या है, ये सीरीज है, राइट। तो दिस इज द सीक्वेंस एंड दिस इज द सीरीज, राइट। अब अपन आगे बढ़ते हैं। सो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हमने ऑलरेडी बता दिया कि अगर डिफरेंस बिटवीन, अगर प्रोग्रेशन क्या होता है कि फर्स्ट टर्म एंड द कंसेक्यूटिव नेक्स्ट टर्म, द डिफरेंस बिटवीन बोथ इज कांस्टेंट, so that is known as progression, ठीक है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या है, इज द सीक्वेंस a1 a2 a3 an is called an arithmetic sequence or arithmetic progression if an plus 1 equals to an plus d, ठीक है। मीन्स क्या हुआ कि d where n is in any natural number where a1 is called the first term and constant term d is called the common difference between ap। मतलब अगर मैं इसको समझाऊं, अगर ढंग से बताऊं, अगर मान लो, है ना, let's take an example, a1 a2 a3 a4 a5 an, एक क्या है, एक सीक्वेंस है, ठीक है, एक क्या है, दिस इज एन सीक्वेंस, ठीक है। इस सीक्वेंस में ये जो पहला वाला टर्म है, दिस इज नोन एज फर्स्ट टर्म, राइट। तो सीक्वेंस का पहला टर्म जो था क्या बोलते हैं उसे, सीक्वेंस के पहले टर्म को वी आर सेइंग द फर्स्ट टर्म, राइट। और अगर मैंने क्या बोला कि अगर a2 minus a1 difference between a2 minus a1 is equals to difference between a3 minus a2 is equals to difference between a4 minus a3 is constant, that is known as d. So that d will be known as what? So this d will be known as common difference, right? First term a1 is known as first term and the difference between the two term, right, next consecutive term is known as common difference, right? समझ में आया? So this concept is known as, this concept is known as arithmetic progression. Arithmetic progression where the a1 is the first term and d is the common difference. अगर ये चीज समझ में आ गया, ठीक है, तो अब इस चीज को देखो कैसे हम इसका इक्वेशन जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। अगर मान लो कि a1 अगर फर्स्ट टर्म है तो इसका a2 क्या हो सकता है, a1 प्लस d। अगर d हमें पता हो तो क्या मैं सेकेंड टर्म को निकाल सकता हूँ, ऑब्वियसली निकाल सकता हूँ, ठीक है। अगर मुझे d पता है और a1 पता है तो क्या मैं इसका थर्ड टर्म निकाल सकता हूँ, दिस इज द फर्स्ट टर्म, क्या है, दिस इज द फर्स्ट टर्म, दिस इज फर्स्ट, दिस इज द फर्स्ट टर्म, तो ये क्या होगा, ये सेकेंड टर्म होगा, राइट, समझ में आ रहा है आपको, है ना। और अगर मुझे थर्ड टर्म निकालना है तो क्या निकल के आएगा, a1 प्लस मैं 2d कर दूंगा तो वो क्या होगा, थर्ड टर्म होगा, समझ में आ रहा है आपको, है ना। और मुझे अगर फोर्थ टर्म निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, मैंने क्या करना है, a1 प्लस 3d करना होगा, दैट विल बी फोर्थ टर्म, राइट। आप देख रहे हो सेकेंड टर्म क्या है, तो सेकेंड टर्म इज 1d, a1 प्लस 1d। थर्ड टर्म क्या है, तो थर्ड टर्म क्या है, a1 प्लस 2d, राइट। फोर्थ टर्म क्या है, a1 प्लस 3d। इसी तरीके से अगर मुझे कोई बोले कि
आठवां टर्म निकालना है, एट्थ टर्म निकालना है, तो क्या होगा, एट्थ टर्म क्या हो सकता है, a1 प्लस 7d, राइट, निकल सकता है, ऐसे निकलेगा, है ना। क्या हो रहा है, फर्स्ट टर्म a1 है, सेकंड टर्म क्या है, सेकंड टर्म इज a1 प्लस d, ठीक है, थर्ड टर्म क्या है, a1 प्लस 2d, मतलब हर एक थर्ड टर्म में एक टर्म कम है, ठीक है। मीन्स अगर सेवंथ टर्म निकालना हो तो क्या होगा, 7 माइनस 1 होगा, ठीक है। एट्थ टर्म निकालना हो तो 8 माइनस 1 होगा। मतलब अगर मुझे कोई बोले nth टर्म निकालना है सीरीज का, सीक्वेंस का, तो क्या होगा, a1 प्लस n माइनस 1 इंटू d, दिस विल बी nth टर्म, nth टर्म। तो समझ में आया हमने क्या किया, हमें क्या करना था, अगर हमें पता है कि a1 अगर फर्स्ट टर्म है किसी सीक्वेंस का, a2 क्या होगा, सो इफ द डिफरेंस बिटवीन a2 माइनस a1 इज d, a3 माइनस a2 इज d, सो ऑल द डिफरेंसेस, अगर हमें कॉमन डिफरेंस पता है और हमें a1 पता है, तो मैं कोई भी टर्म निकाल सकता हूँ इस सीक्वेंस का, ठीक है। तो हमने वही तो किया, अगर हमें a1 पता था तो a1 इज द फर्स्ट टर्म, a1 में हमें d कॉमन डिफरेंस पता था, ठीक है, तो हमने क्या किया, सेकंड टर्म निकाल लिया। हमें क्या करना था, थर्ड टर्म निकालना था, तो हमने थर्ड टर्म भी निकाल लिया। अब इसको एग्जांपल हुए, एक क्वेश्चन बना लो, है ना। सो कुछ भी एग्जांपल ले लेते हैं अपन, है। मान ले कि अपने पास एक नंबर है 3 9, राइट, ठीक है। एग्जांपल क्या है, हमारे पास एक टर्म है, राइट, 3 then 6 then 9 then 12 so on to अब ये एक सीक्वेंस है, ठीक है। इस सीक्वेंस में हमें क्या करना है कि इस सीक्वेंस का हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है 25वां टर्म हमें निकालना है, 25th टर्म, ठीक है। 25th भी याद है तो कैलकुलेशन थोड़ा डिफिकल्ट होगा। सो लेट्स टेक 10th टर्म हमें निकालना है, ठीक है। 10th टर्म हमें निकालना है, तो क्या हम निकाल सकते हैं, ऑब्वियसली वी कैन डू, है ना। क्या कर सकते हैं, 3 इज अ फर्स्ट टर्म, है ना, ये क्या है, ये क्या है, ये फर्स्ट टर्म है, राइट। डिफरेंस बिटवीन 3 and 6 इज हाउ मच, इज 3। डिफरेंस बिटवीन 6 and 9 इज हाउ मच, 3। डिफरेंस बिटवीन 9 and 12 इज हाउ मच, 3। तो कॉमन डिफरेंस हमें पता है, हमें क्या है, हमें a पता है, a इज 3, d क्या है, d इज आल्सो 3। हमें क्या निकालना, 10th टर्म। 10th टर्म क्या होगा, दिस इज द इक्वेशन, है ना। क्या निकाला, अभी हमने डिराइव किया था कि a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। तो डी हमें पता है, हमें 10th टर्म निकालना वो हमें पता है, फर्स्ट टर्म हमें पता है। सो व्हाट विल बी दिस, सो द 10th टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस विल बी हाउ मच, दिस AP विल बी 3 प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी इज हाउ मच, 3। so this will be 3 plus 9 into 3, correct। how much will be this will be 3 plus 27, so what will be the 10th term, 10th term will be 30, right, right। hope you got this concept, right। समझ में आया this concept, so this is very easy, है ना। हमें क्या करना है, हमें एक टर्म को पता करना है, कॉमन डिफरेंस क्या है, फर्स्ट टर्म क्या है, या मान लो कुछ भी हो, है ना। अगर हमें 10th टर्म कोई दे दे, है ना, 10th टर्म दे दे एंड हमें कॉमन डिफरेंस बता रहे हैं, ठीक है, और हमें बोले कि सीरीज सीक्वेंस बनाओ, ठीक है, तो वी कैन आल्सो, हमारे पास 10th टर्म है, हमारे पास कॉमन डिफरेंस है, हम इस इक्वेशन में 10th टर्म को पुट करेंगे, फर्स्ट टर्म और कॉमन फर्स्ट टर्म हम फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद हम डी का वैल्यू ऐड करते चलेंगे, सो विल गेट द सीक्वेंस, राइट। सो दिस इज वेरी इजी, वेरी इंटरेस्टिंग, है ना। होप यू अंडरस्टैंड दिस थिंग। तो आगे बढ़ूं, चलो, ग्रेट है। So we have the first question, determine the AP whose third term is 5 and seventh term is 9। तो अभी हमने क्या इक्वेशन डिराइव किया, है ना, अभी क्या इक्वेशन डिराइव किया, इक्वेशन ऑफ AP, व्हाट वी हैव डिराइव, तो वी हैव डिराइव द इक्वेशन, मैं एक बार इक्वेशन लिखता हूँ। सो लेट्स फर्स्ट ऑलरेडी गिवन, क्वेश्चन पहले मैं लिख देता हूँ आपको, ताकि आपको रेफरेंस में इजी रहे, है ना। nth term of AP is a
ठीक है। तो हमने nth टर्म यहाँ पे डिराइव किया था, ठीक है। लास्ट जो अभी डिस्कशन चल रहा था उसमें हमने nth टर्म डिराइव किया था, ठीक है। अब कोई बोल रहा है कि थर्ड टर्म इज 5, ठीक है। तो हमने 5 टर्म थर्ड टर्म हमें दिया हुआ है, सो हमने क्या करना है, थर्ड टर्म इसमें दिया है, so थर्ड टर्म इज गिवन, थर्ड टर्म इज 5। हमने क्या करना है, इसमें थर्ड टर्म हमने दिया है, n की जगह 3 पुट करते हैं, ठीक है। सो a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू 5 इन्होंने दे के रखा है, ठीक है। तो हाउ मच इज दिस, ये क्या बन पा रहा है, ये बन पा रहा है a प्लस 2d इक्वल्स टू 5। अरे ये तो यू नो लीनियर इक्वेशन बन रहा है ना, 2 वेरिएबल लीनियर इक्वेशन बन रहा है। चलो इसको मैं मान लेता हूँ इक्वेशन 1, राइट। और क्या दिया हुआ हमारे पास, 7th टर्म इज 9, 7th टर्म दिया हुआ हमारे पास, तो n की जगह मैं 7 पुट करता हूँ, तो क्या निकल के आएगा, तो a प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू हाउ मच इज, दिस इज 9, राइट। ये क्या बन पा रहा है, a प्लस 6d इक्वल्स टू 9। अरे ये तो दूसरा इक्वेशन हमारे लिए बन गया, ये तो कुछ आसान दिख रहा है, आसान सा होते हुए दिख रहा है इक्वेशन। सो नाउ वी हैव 2 इक्वेशन, वी हैव टू सॉल्व बोथ द इक्वेशन and we will get the value of a and value of d. So the second equation is 6d is equals to 9। दो इक्वेशन बन पाया, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, माइनस माइनस कर देता हूँ, so a गॉट कैंसिल, so here it is minus 4d is equals to how much, this is minus 4, so minus minus गॉट कैंसिल, 4 गॉट कैंसिल, d की वैल्यू कुछ निकल के आ रही है, वाह। जैसे d की वैल्यू हमारे पास निकल के आई, तो मैं d की वैल्यू इक्वेशन में पुट करता हूँ, इक्वेशन 1 में put the value of d in equation 1, so we'll get a plus 2 into 1 equals to 5, right। So we'll get a plus 2 equals to 5, so we'll get the value of a is 5 minus 2 equals to 3, ठीक है। So the first term is 3, right, and common difference is 1। So what is the first term, first term is how much, first term is 3 and CD is what, D is common difference is how much, this is the 1। हमें क्या करना है, डिटरमाइन द AP whose third term है, हमें AP निकालना है, फॉर्म करना है। तो कौन सी बड़ी चीज़ है ना, हमारे पास ऑलरेडी nth टर्म का इक्वेशन है हमारे पास, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, A है, A हाउ मच, A is 3 प्लस n is हाउ मच, n मान लो फर्स्ट टर्म निकालना है, 1 माइनस 1 इंटू डी इज हाउ मच, 1, दिस विल बी 3, ये 0 हो गया, ठीक है। सेकेंड टर्म निकालना है, सो दिस इज द फर्स्ट टर्म, राइट। सेकेंड टर्म हमें निकालना है, so सेकेंड टर्म विल बी 3 प्लस 2 माइनस 1 इंटू 1, so this is 3 plus 1, so this will be 4, right। so थर्ड टर्म अगर हमें निकालना हो तो क्या होगा, so 3 plus 3 minus 1 into d is how much, d is we have d is 1, so right, so this will be 3 plus 2, this is 5। तो हमें क्या बनते हुए नजर आ रहा है, फोर्थ टर्म मुझे निकालना है, फोर्थ टर्म मैंने क्या किया, 3 plus 4 minus 1 into d, so this is 4 plus 3 into 1, so this is 6। तो हमें क्या टर्म बनते हुए नजर आ रहा है, AP, this is 3, this is 4, this is 5 and this is 6 and so on, so this is the AP, right। By this we have to solve the question, correct, so simple, right। तो हमें क्या करना था, हमें सबसे पहले हमने फर्स्ट टर्म को, हमारे पास दो टर्म दिया हुआ था, हमने दोनों टर्म को इक्वेट किया एंड वी गॉट द वैल्यू, राइट, सो इजी, करेक्ट। आगे बढ़ूं, है समझ में आ रहा है ये, ठीक है। चलो लेट्स डू अनदर क्वेश्चन, राइट। सो वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन, द 10th term of an AP is -4 and 22nd term is -16, find the 38th term, राइट। पहले क्वेश्चन में हमने क्या किया था, हमें AP बनाना था, राइट। इस क्वेश्चन में क्या करना है, हमें 38th टर्म निकालना है। ये भी इजी है, हमें पता है इक्वेशन, वी कैन डू दिस, वी ऑलरेडी लर्न द थिंग्स, वी ऑलरेडी लर्न द कांसेप्ट, so once our concept is clear, so the questions are very easy, right। so let's do this question again, correct। so what is nth term equation, right। so what is that, a plus n minus 1 into d, we write for our reference, ठीक है। आपको ये चीज़ हमें याद रखनी है, सॉल्व करने से पहले इक्वेशन नोट कर लो नोटबुक में, ताकि आपको
क्वेश्चन करने में आसानी रहे और प्रॉब्लम ना हो आपको, करेक्ट। लेट्स डू दिस क्वेश्चन। तो व्हाट इज गिवन, सो हमें 10th टर्म इन्होंने दे के रखा है, 10th टर्म, सो a प्लस n माइनस n, 10th टर्म वाली n is 10, means n is 10, right? a plus 10 minus 1 into d, we don't know a, we don't know d, so we have to assume first term is a and last common difference is d. How much? This is minus 4, right? So a plus 9d is equals to minus 4. Again this is one equation, right? The second 22nd term is minus 16. इसमें और देख लो, 22nd term इन्होंने दे रखा है, ठीक है। 22nd term, so the first term is a plus 22nd term is 22nd minus 1 into d, right? It equals to how much? It's minus 16, correct? So this will be a plus 21d is equals to minus 16. So this we got another equation, right? So we got the two equations. Now we have to solve both equations. We'll get the value of a and d, right? ये तो आसानी से कर लोगे, right? तो हम इसे solve करते हैं. So this is a plus 9d is equals to minus 4 and this is a plus 21d is equals to minus 16, correct? मैं क्या करूँगा? I will subtract. So a got cancelled. So 9d minus 21 how much? Is minus 12. d is equals to, so this we are going to 16 plus 16 minus 4 is 12, ठीक है। So 12 got cancelled and d is equal to minus 1. So you got the common difference is minus 1. Common difference हमें निकल गया। So we'll get the put the value of common difference into the equation 1 or equation 2, anywhere we'll put the value of d. So this is the a plus 9 into minus 1 is equals to minus 4. So a plus minus 9 is equals to minus 4. How much will be a? A will be minus 4 plus 9, so a will be 5. So our first term is 5 and common difference is minus 1, d is minus 1, right? So we have to find out the 30th term, right? So 30th term में we put the value of first term and common difference, right? So we have to find out 38th term. So we can do, what is our first term? First term is 5, ठीक है, plus what is, how much we have to find? 38 minus 1, and how much is the common difference? Is minus 1, right? So this is the 5 plus 37 into minus 1, right? So this will be 5 minus 37. How much is this? This will be minus 32, right? So 38th term will be, our answer will be 38th term is minus 32. By this way we have to solve the question. How is this question? This is so simple and so easy, right? We can do by learning the concept. Once we learn the concept, it will be very easy to solve the questions, right? So note down this question and hope you learn the concept very well, ठीक है? We'll do next question, right? Next question concept को समझते हैं and we try to do all, वो भी हम करने की कोशिश करते हैं, right? So we have the next question. If in an AP, mth term is n and nth term is m, where m is not equals to n, find the pth term, right? तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, right? वहाँ पे नंबर था, यहाँ पे इन्होंने अल्फाबेट्स डाल दिए हैं, ठीक है, बस इतना ही डिफरेंस है। हमें क्या करना है, उसमें क्या था, 16 17 टर्म उन्होंने दे रखा था और उन्होंने 30th टर्म पूछा था। यहाँ पे mth टर्म और nth टर्म इन्होंने दे के रखा है और हमसे pth टर्म पूछा है, ठीक है। व्हाट यू हैव टू डू, हमें क्या करना, फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस हमें फाइंड आउट करना होगा एनी हाउ। अगर हमें वो अगर निकल के आ गया तो हम pth टर्म भी निकाल लेंगे, राइट? सो विल ट्राई टू डू दिस क्वेश्चन आल्सो, राइट? समझ में आ गया हमें कैसे प्रोसेस कैसे करना है, ठीक है। सो व्हाट इज आवर nth टर्म इक्वेशन, व्हाट इज आवर nth, हमारा जनरल टर्म का इक्वेशन क्या है, व्हाट इज द जनरल टर्म इक्वेशन ऑफ एन एपी, जनरल टर्म इक्वेशन ऑफ जनरल term equation of n AP is what? This is a plus n minus 1 into d. So we know the formula, right? So if you know the formula, if you know the concept, we can easily do the question,
राइट एंड स्टार्ट द क्वेश्चन। क्या दिया हुआ हमारे पास कि mth टर्म ऑफ एन AP इज n, राइट। तो लेट्स टेक फर्स्ट टर्म इज a, है ना, लेट्स टेक फर्स्ट टर्म इज a एंड कॉमन डिफरेंस इज d, ये आपको एज्यूम कर लेना है, राइट। सो व्हाट विल बी द mth टर्म? mth term will be a plus m minus 1 into d equals to n. So this is the equation 1, right? And what is it? And nth term is m, and the second equation is a plus n minus 1 into d equals to m, right? So given is that, what is given condition is m is not equals to n, ठीक है। हमें pth टर्म निकालना है, मीन्स अगर मैं बात करूं, अगर मैं a और d की वैल्यू अगर निकाल लेता हूं, so we'll get the pth term, right? So we have the two equation, मैंने क्या करना है, सब्ट्रैक्ट कर देना है, ठीक है। So we'll get m minus 1 into d minus n minus 1 into d equals to m minus n, ठीक है। समझ में आ रहा है ना? ये मैंने क्या किया, बोथ इक्वेशन को मैंने इक्वेट कर दिया, ठीक है। सो वी गॉट md minus d minus we got nd plus d equals to m minus n, right? So we cancel this, ठीक है। हमने क्या किया, d कॉमन ले लिया, so we got m minus n equals to m minus m। तो अरे वाह, ये क्या निकल के आ रहा है? So we got d equals to 1, अरे वाह, we got the value of d equals to 1. Oh my god. So can we find out the value of a? Obviously we can find the value of a. So let's put the value of d into equation 1, right? So we'll get a plus m minus 1 into 1 equals to n, right? So we get a plus m minus 1 equals to n, right? So this is m, right? So we get a equals to n minus m plus 1. So we got the value of a. We already know the d. So what we have to find? We have to find out the value of pth term. So what will be the pth term? So our pth term will be a. But how much is a? A is n minus m plus 1, right? Plus this is the pth term, p minus 1 into d. How much is d? This is the d. So we'll get n minus m plus 1, right? Plus p minus 1. So 1 got cancelled. So the pth term will be how much? N minus m plus p, correct? So this will be the pth term of AP. अब इन्होंने क्या दिया है, अगर ये m and n अगर इक्वल अगर होता तो क्या होता, ये दोनों कैंसिल हो जाते तो pth term p बचता, right? But m and n is not equal, is given, so the pth term will be n minus m plus p. So simple. So I hope you understand this concept, right? समझ में आ गया होगा, correct? So और कुछ करना है और क्वेश्चन करना है, बस concept इतना ही है। अगर if you know the two things, first is first term and another is common difference, बाद में तो कुछ भी दे दे वो, है ना, हमें क्या करना है, किसी भी तरीके से a and d फाइंड आउट करना है। वो अगर हमने फाइंड आउट कर लिया, so we got a solution, right? Let's do another question. Sum of nth term of AP. चलो ग्रेट है, नया कॉन्सेप्ट है, इस चीज को भी समझ लेते हैं, ठीक है। हमें क्या करना है, हमें एक AP दिया हुआ है, ठीक है। अभी हमने बहुत सारे AP डिजाइन किए, अब हमें क्या करना है, उनके सारे टर्म को ऐड करना है, सम करना है। उसके लिए कुछ नहीं, लेट्स टेक एन एग्जांपल, ठीक है। एक एग्जांपल से मैं समझाता हूँ, है ना। Let's take an example. Let a1 is the first term, a2 is the second term, a3 is the third term, a4 is the fourth term, and an is how much? This is the nth term, correct? और हमें पता है कि अगर फर्स्ट टर्म अगर a मान लो और कॉमन डिफरेंस अगर d मान लो, ठीक है, तो हम सीक्वेंस सीरीज को बना सकते हैं ना, हम AP को डिजाइन कर सकते हैं। तो इन दिस लेट्स हमने मान लिया था कि फर्स्ट टर्म a है एंड कॉमन डिफरेंस d है, ठीक है। a कितना होगा, a विल बी a प्लस 1 minus 1 into d, right? So this will be a, how much? This will be a
राइट। ये कितना होगा a प्लस d होगा, ये कितना होगा a प्लस 2d होगा, ये कितना होगा a प्लस 3d होगा, और ये कितना होगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होगा। अब हमें क्या करना है, हमें इन सारे टर्म को ऐड करना है, राइट। तो हमने क्या किया, लेट्स से Sn इज द एडिशन ऑफ ऑल, ठीक है, a प्लस d, राइट, प्लस a प्लस 2d, राइट, प्लस a प्लस 3d, प्लस डॉट 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 a प्लस n प्लस 1 इंटू d, ठीक है। ये हमने एडिशन करना है ये, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको मैं रिवर्स में डालता हूँ, रिवर्स में लिखने की कोशिश करता हूँ। जो मैंने a प्लस n प्लस 1 इंटू डी, a माइनस 1 माइनस, सॉरी दिस इज नॉट प्लस, दिस इज द माइनस, राइट। तो दिस इज a n माइनस 1, राइट। अगर मैं रिवर्स ऑर्डर में लिखता हूँ, इसको कैसे लिख पाऊंगा, इसको लिख पाऊंगा अगेन, ये तो अगेन ऐसा नहीं होगा, ठीक है। सो दिस विल बी a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सो व्हाट इज दिस, ये क्या है, ये लास्ट टर्म है, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, a प्लस n माइनस 2 इंटू डी होगा, राइट, ऐसे ही कुछ होगा, a प्लस n माइनस 2 इंटू डी होगा, प्लस प्लस सो ऑन सो ऑन सो ऑन सो ऑन, यहाँ पे a हो जाएगा, राइट। अगर आप देखोगे, सो इफ यू ऐड बोथ द इक्वेशन, इफ यू ऐड बोथ द इक्वेशन, व्हाट विल गेट, अगर मैं दोनों को ऐड कर दूंगा, विल गेट 2 इंटू Sn इक्वल्स टू हाउ मच, तो मुझे क्या निकल के आ रहा है, अगर मैं इसको इक्वेट करूं तो n हो रहा है ना, n टाइम्स a हो रहा है, ठीक है। so n इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ऐसा तो कुछ निकल के आ रहा है हमारे पास, ठीक है। n इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी निकल के आएगा अगर सारे टर्म को ऐड करोगे, राइट। सो हाउ मच विल बी Sn will be n upon 2, so this will be 2a plus n minus 1 into d। सिंपल है, ठीक है। हमने क्या किया, हमने दोनों टर्म को ऐड किया एंड अपोजिट करके लिखने की कोशिश करी, जैसे हमने वो लिखा, so we got the value of sum of n term of AP, right। so this is so simple, right। अगर हमें ये निकल के आ गया है तो this we have to remember, हमें ये याद रखना है, ठीक है। और इसमें कुछ नहीं है, ठीक है, आप देखोगे, सो a1 a2 a3 a4 ANR योर है ना, ऑल टर्म्स आपको जनरेट करने आता है, ठीक है। हमने क्या किया, पहले टर्म्स को ऐड किया, फिर हमने टर्म्स को रिवर्स ऑर्डर में लिखा, सो यू गेट दिस, ठीक है। आप सबको ऐड करोगे तो यू विल गेट दिस, राइट। तो अपने Sn 2 टाइम्स हमने ऐड किया, तो सो दैट वाज, क्योंकि हमने Sn प्लस Sn किया था तो 2 Sn आ गया था, सो हमने क्या किया, 2 को डिवाइड कर दिया, सो n अपॉन 2 2a plus n minus 1 into d. This is the sum of nth term of AP. This is the derivation of sum of nth term of AP. So we got this value. अब इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं, ठीक है। जैसे हमें फर्स्ट टर्म nth टर्म अगर हमें पता है, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस पता है, तो हम ये भी पता कर लेंगे, ठीक है। हमने ऑलरेडी वो डिराइव किया था, अगर हमें वो पता है, ठीक है, फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस, इसमें तो कुछ भी नहीं है, एक्स्ट्रा तो कुछ भी नहीं है। फर्स्ट टर्म अगर कॉमन डिफरेंस हमें पता है तो हम नंबर ऑफ टर्म्स भी पता कर लेंगे, ठीक है। और अगर नंबर ऑफ टर्म्स हमें पता है, फर्स्ट टर्म पता है, तो हम कॉमन डिफरेंस पता कर लेंगे एंड वी गेट द वैल्यू ऑफ Sn, राइट। सो लेट्स डू सम एग्जांपल्स, करेक्ट। वेयर इज रिमोट, चलो ये क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। क्या है क्वेश्चन, कि सम ऑफ n टर्म ऑफ टू अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आर इन द रेशियो ऑफ 3n plus 8 is to 7n plus 15, find the ratio of their 12th term, ठीक है। अब इनमें इन्होंने क्वेश्चन दिया है कि दो AP है ना, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ टू अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है जिसका कि फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस दोनों अलग अलग हो सकते हैं, दो AP है, मींस बोथ आर डिफरेंट, राइट। तो लेट्स टेक, है ना, पर मान लेते हैं, है ना, तो दोनों दो कलर में लिखेंगे। लेट्स ए पहला जो AP है, फर्स्ट AP है ना, फर्स्ट AP का फर्स्ट टर्म A1 है एंड कॉमन डिफरेंस D1 है, ठीक है। और दूसरा जो और दूसरा जो येलो से करता हूँ, एंड द सेकेंड AP जो है, दूसरा जो AP है, सेकेंड AP जो है, उसका
A2 है and D2 है. This is the first term and first term and this is the common difference. Correct? ये मैंने मान लिया. ठीक है. The sum of the n terms of arithmetic progressions are in the ratio of this. ठीक है. अब हमें फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस मान लिया. हमें सम का इक्वेशन आता है तो मैं उसको वो मेंशन कर देता हूँ यहाँ पे. लेट्स मेंशन दिस ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो. सो दिस इज n इक्वल्स टू n अपॉन 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू dc. दिस इज द सम ऑफ n टर्म ऑफ ap. ठीक है. अब ये जो वैल्यू है उसमें पुट करते हैं. ठीक है. एंड विल ट्राई टू फाइंड आउट इनका रेशियो निकालते हैं. द रेशियो इज गिवन. करेक्ट. So let's do that. So we have S1 मान लो. चलो इसको मैं दूसरे कलर से करता हूँ. राइट. ताकि कौन सा कलर ग्रीन तो दिखना नहीं है. So we have so many colors. Right. So let's take blue. Okay. चलो ठीक है. Sum of n. अब हमने क्या करना है? डिवाइड करना है. ठीक है. पहला क्या है? S1 अपॉन S2 करना है. ठीक है. S1 क्या निकल के आना है अपने को? n तो कॉमन है. n टर्म ऑफ AP ऑलरेडी गिवन. सो दिस इज द 2a1 प्लस n माइनस 1 इंटू d1. दिस इज द फर्स्ट AP एंड दिस इज द n अपॉन 2. दिस इज द 2a2 प्लस n माइनस 1 इंटू d2. सो दिस विल बी दिस is how much is given to us is how much. This is the 3n. This is the how much? This is the 3n plus 8, right? And this is 7n plus 15, correct? So let's remove this now. We don't require this, right? So we have already done two with this. So we got the equation. What we can do? We can oh shit. Sorry. चलो इसको अपन ठीक से लिखते हैं. ठीक है. So this was n upon 2, this was n upon 2, this is 2a1, 2a1. तो हम क्या कर सकते हैं? हम इसे और इसे कैंसिल कर सकते हैं. राइट. एंड ऐसे भी कैंसिल वही मिटा था. है ना. सो वी कैन कैंसिल बोथ. राइट. अब क्या कर सकते हैं हम ये कर सकते हैं. एक काम करते हैं. हमने क्या करना है कि मैंने a1 को फ्री कर देता हूँ. ठीक है. a1 प्लस n माइनस 1 अपॉन 2 कर देते हैं. न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 2 से आपने क्या किया? डिवाइड कर दिया. a2 प्लस n माइनस 1 इंटू 2 बाय d2 इक्वल्स टू 3n प्लस 8n अपॉन 7n प्लस 15. है ना. वी गॉट दिस. राइट. तो हमें कुछ तो समझ में आ रहा है कि कुछ तो बनते हुए नजर आ रहा है ये. ठीक है. फाइंड द 12th टर्म. राइट. सो हमें क्या करना है? 12th टर्म निकालना है ना. एंड द रेशियो ऑफ दिस. अगर मैं 12th टर्म अगर निकाल लूँ अगर n माइनस 1 से, अगर 1 माइनस 1 अपॉन 2 इक्वल्स टू अगर मैं 12 करूँ, सो हाउ मच विल बी? n विल बी 24 माइनस 24 प्लस 1. सो n विल बी 25. 25 तो निकल के आ रहा है कुछ. है ना. सो फाइंड द रेशियो ऑफ 12th टर्म. राइट. विथ हाउ मच? किसके साथ 12th टर्म का रेशियो निकालना. चलो ठीक है. है ना. 12th टर्म हमारा ये है. सो इफ वी पुट द वैल्यू ऑफ 12, सो विल गेट द समथिंग. कुछ तो हमें मिलेगा. है ना. सो दिस इज 7 एंड दिस इज 8. तो यहाँ पर अगर मैं 12 डालूँ तो दिस विल बी 2 इंटू 12 प्लस 8. राइट. एंड दिस विल बी 7 इंटू 12 प्लस 8. राइट. तो यहाँ पे हमें कुछ तो बनते हैं. 36 प्लस 8. 36 plus 8 we got. Here we got 84 plus 8. Right. So this is how much? This is 44 and this is 88. So we got 1 by 2. 1 by 2 हमें यहाँ पे मिल रहा है. And here we are getting how much? तो कुछ 1 by 2 तो रेशियो निकल के आ रहा है. Find the ratio of 12th term. अगर मैंने n की जगह अगर मैंने डायरेक्टली मैंने निकाल लिया. अगर n की जगह मैंने 12 डाला वो दरेश. है ना. तो 12th टर्म है ना. मतलब वो दोनों अलग अलग वो एक्चुअली अरिथमेटिक प्रोग्रेशन थे. तो n का वैल्यू मैंने जैसे 12 डाला. सो दिस विल बी a1 प्लस, हमें फर्स्ट टर्म एंड d को निकालने की जरूरत ही नहीं थी. 11d अपॉन a2 प्लस 11d इक्वल्स टू
1/2, so the ratio 1:2. Hope you understand this concept. नहीं समझ में आया तो आप फिर से देखो, है ना, वीडियो को रिपीट करके देखना है, पर मैं आपको फिर से समझा देता हूँ, है ना। दो एपी थे जिनके की दोनों एपी अलग अलग थे, अलग अलग एपी है तो कॉमन डिफरेंस एंड फर्स्ट टर्म दोनों अलग अलग होंगे, सो वी कंसीडर a1 and a2 as the first term, and a1 and d1 is the common difference of first ap and common difference of second ap is a2 and d2, right? So we consider, हमें सम का पता था कि s1 क्या होता है, फर्स्ट ap का सम क्या हो सकता है n/2 2a1 plus n-1 into d1, ठीक है। दूसरे का क्या होना था n/2 2a2 plus n-1 upon d2, so we already given, this is given 3n plus 8 upon 7n plus 15, correct? So from हमने क्या किया, a से हमने 2 को फ्री कर दिया, the value of 12 का हमने निकाला तो a1 plus हमने कैलकुलेट किया, so we got the value 1/2, so this is the answer. So this is very simple, है ना, concept के थ्रू ये निकल के आ गया, right? So if we know the concept, so any kind of questions we can do, right? It's not about the questions, it's about concept. अगर concept अगर आपका clear है, आप कोई भी question कर सकते हो, correct? तो कुछ और करें, और question करूँ, चलो। So the sum of nth term of AP is 3n square, so this is square, ठीक है, plus 5n, right? And its mth term is 164, find the value of m. इसी तरीके से करते हैं, राइट, है ना, कुछ करने की कोशिश करते हैं सेम टू सेम वैसे, है ना। सम ऑफ n टर्म्स ऑफ AP is, ठीक है ना, फर्स्ट टर्म मान लो कि a1 था, ठीक है, कॉमन डिफरेंस a1 क्यों माने, है ना, इसमें a and d मानते हैं ना, ठीक है, फर्स्ट टर्म इज a एंड कॉमन डिफरेंस इज d, ठीक है, हमने AP का ये मान लिया। So Sn is how much? Sn is given. Sn is 3n square plus 5. This is given, right? This is given. ये तो दिया हुआ है। और फिफ्थ टर्म, mth टर्म हमें वो भी दिया हुआ है। So mth टर्म अगर हमें निकालना होगा तो क्या होगा, वो होगा a plus m minus 1 into d, ठीक है, m minus 1, ठीक है, mth टर्म निकालना है। So this is also given, right? 164, है ना, ये दिया हुआ हमारे पास, ठीक है, और ये भी दिया हुआ है। So this is given and this is given. तो can we write this as n/2 2a plus n minus 1 into d. कैन वी राइट दिस टर्म लाइक दिस, हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। हमारे पास a दिया हुआ ये है ना, a plus m-1 into d, ठीक है। सो कैन वी राइट दिस एज n/2 a plus a, है ना, प्लस n-1 into d. Yes, we can also write this, right? तो if sum of nth term of AP is 3n square plus 5n, sorry 5n, right? तो मैं यहाँ पे क्या करता था, मैं वही सोच रहा था कुछ, तो n plus 5, ठीक है। अब यहाँ पे ये है तो this n and this n got cancel, ठीक है, समझ में आ रहा है ना, ये तो समझ में आया होगा आपको, है ना, क्योंकि हमने इसी को, है ना, सम के फॉर्म में ट्रांसफर किया था। सो दिस 2 गॉट हियर, सो दिस बिकम्स 6n plus 10 is equals to 2a plus n-1 into d, राइट। ये तो कुछ ऐसा बन के आ रहा है, राइट। अब तो अपन को कुछ तो समझ में आ रहा है ना, 6n plus 10 is equals to 2a plus nd minus d, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं, so how we can do, let's think, है ना, इसमें हम और क्या कर सकते हैं, we can do this as, इसमें और एक काम करते हैं ना, we can also do, अपन क्या करते हैं ना, we remove this, है ना, और अपन nth टर्म निकालते हैं इसका, है ना, एक बार nth टर्म निकालते हैं एंड nth टर्म से कंपेयर करते हैं, ठीक है।
So let's remove this concept. मैं क्या करता हूँ, nth टर्म निकालता हूँ, ठीक है। तो let's find out nth term, right? nth term क्या होगा कि let's state as n is given as how much is given, this is 3n square plus 5n, ठीक है। ये हो गया sum of n term। तो अगर मैं इसमें n को अगर -1 कर दूं, ठीक है, तो s n - 1 पहला टर्म निकालूं तो दिस विल बी 3n - 1 का स्क्वायर प्लस 5n - 1, ठीक है। ये कितना होगा 3n स्क्वायर प्लस 1 - 2n प्लस 5n - 1, राइट। ये कितना होगा 3n स्क्वायर प्लस 3 - 6n प्लस 5n - 5, ठीक है। ये कितना निकल के आ रहा है, सो 3n स्क्वायर माइनस n एंड दिस इज -2, सो दिस विल बी -n एंड दिस विल बी -2। सो n - 1 अगर n टर्म का ये आ रहा है, n - 1 ये टर्म आ रहा है, तो अगर मैं sn - 1 करूं एंड सम ऑफ n टर्म इतना है और सम ऑफ n - 1 टर्म इतना है, कितना निकल के आएगा हमें, अगर ये मैं करूं सो दिस विल बी, अगर ये इतना है तो इसमें ये माइनस करना है हमें, ठीक है। सो दिस विल बी -3n स्क्वायर प्लस n प्लस 2, ये होगा, है ना। सो दिस 3n स्क्वायर 3n गॉट कैंसल, ठीक है, कुछ तो बनते हुआ आ रहा है यहाँ पे। सो दिस विल बी 5n प्लस n, दिस विल बी 6n प्लस 2। ये हो गया हमारा nth टर्म, राइट। और हमारा mth टर्म इज ऑलरेडी गिवन, ठीक है। तो ये दिस इज गिवन टू 164, nth टर्म बोलो या mth टर्म बोलो, ठीक है। सो दिस इज 164, सो वी गॉट द वैल्यू नाउ, प्लस 2 इक्वल्स टू 164, राइट। सो 6n इक्वल्स टू so 6n equals to 164 minus 2 equals to 162, so n equals to how much, 162 divided by 6, so this will be 2 and 7, so the n is equals to, so n is equals to 27, right? So the mth term will be, find the value of m, एक ही चीज है ना, m बोलो है ना, we got the value, है ना, mth term will be the 27, right? So how was this question? This question is tricky, है ना, but we find out, है ना। हमने ये कैसे कि निकाला, अगर sum of n term is given, तो अगर मैं उससे एक टर्म पहले वाला अगर टर्म ले लूँ, दोनों का डिफरेंस कर दूँ, तो nth टर्म जो लास्ट टर्म है वो हमें मिल जाएगा, ठीक है। अगर वो हमें मिल गया, so वो that's already given, right? तो हमें we got the value n, so this is mth term 164, correct? How was this question? Very good, right? Let's see another problem. Arithmetic mean there is nothing, है ना। अगर मान ले, है ना, take an example, अगर मान लो कि ऑलरेडी मीन मीडियन ऑलरेडी आपने पढ़ा है, ठीक है। तो अगर मान लो a1 and a2 अगर दो A1 and A2 अगर मान लो कि दो AP है, ठीक है। So the given two number A and B, you can so A and B, है ना, A and B are the two terms, right? A1 and A2 are the two terms. So arithmetic mean क्या होगा, दो टर्म के बीच का एवरेज, है ना। So this will be A1 plus A2 by 2. So this will be AM, arithmetic mean between two numbers, right? अगर मान लो n टर्म्स होगा, अगर ये अगर A1 A2 A3 तो an तक अगर होता तो अपन क्या करते हैं, यहाँ पे एवरेज था, दो नंबर था तो 2 से डिवाइड किया। अब यहाँ पे अगर अरिथमेटिक मीन ऑफ n नंबर्स निकालना हो तो अपन क्या करेंगे, A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस डॉट 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 an प्लस डिवाइड बाय n कर देते हैं, है ना। अरिथमेटिक मीन ऑफ दिस वाज अरिथमेटिक मीन ऑफ n numbers, right? n numbers, so this we can find out the arithmetic mean of a and b. a and b दो नंबर्स के लिए डिवाइड बाय 2 करना था, n नंबर्स के लिए डिवाइड बाय n करना था, 3 नंबर्स के लिए डिवाइड बाय 3 करना था, क्योंकि एवरेज था, है ना। जितने नंबर थे उतने नंबर से डिवाइड कर देना है। सो
so we'll get the value of arithmetic mean. So simple, right? So we learn three things. We learn sequence. So what all things we learn? We learn sequence, definition of sequence. What is the sequence? We learn series, right? The addition of all the sequences known as series, right? Thereafter we learn the derivation of arithmetic equation of arithmetic mean, correct? Thereafter what we learn? We learn so we did so many problems, correct? Thereafter we learn derivation of sum of and term of AP, ठीक है? वो हमने सीखा, फिर उस पर भी 2-3 क्वेश्चंस किए, ठीक है? वो कॉन्सेप्ट भी हमने क्लियर किया. उसके बाद हमने क्या किया? हमने अरिथमेटिक मीन निकाला. दैट्स इट. इतना ही बस इस चैप्टर में है, ठीक है? और कुछ प्रॉब्लम हो सो कीप पोस्टिंग मी एंड विल रिवर्ट यू, है ना? कोई भी प्रॉब्लम में कोई किसी तरह का प्रॉब्लम हो सो पोस्ट इन माय यूट्यूब चैनल सो वी कैन सॉल्व योर इशू, राइट? थैंक यू. और भी कुछ है देख लेते हैं, है ना? So thank you. Let's subscribe it, like it, and share our channel. Thank you. Thank you very much. Bye bye. Thank you. Like it, share it, and subscribe it.